Good evening to all the students. Today we are going to start the next topic, which is the transformer. The transformer is an electric device which is used to increase or decrease the applied alternating voltage. Okay. When we increase or decrease the voltage, then the law of energy conservation is also obeyed, and that's why the current will reduce if we increase the voltage, or the current will increase if we decrease the voltage. That is, the power, which is the product of voltage and current, will remains constant in case of the transformer. Clear? So this transformer basically works on the principle of the mutual inductance. Okay, and we know the principle of mutual inductance is that if there is change in the current in primary coil, then the magnetic flux associated with the secondary coil will also change it. Clear? And vice versa. So the equation we can write this phi 2 is proportional to I1, and the proportionality constant will be M21. Clear? So this is the principle which we used in case of the transformer. The transformer basically used only with in case of the alternating voltage or alternating current. The direct voltage and direct current cannot be used in case of the transformer, remember. Okay, even the transformer do not change the frequency of the input signal. जितनी frequency AC की input पर रहेगी, the same frequency we will get at the output. Clear? There are two types of transformer. The first one is a step up and the second one is a step down. Step up is used to increase the applied voltage. Okay, means output voltage will be higher than the input voltage, and step down is used to decrease the applied voltage, means the output voltage will be low comparative to the input voltage. Clear? So these are the two types according to their working. According to their construction, there are again we divide or classify the transformer in two categories. The first one is core type and second one is the shell type. But before discussing that, I want to share what are the different components or different things which we use in formation or construction of this transformer. There are only three things which we use. The first one is the primary coil, second one is the secondary coil, and third one is the soft iron, which is used as a core of the coil. है ना, जिस पर हम कॉइल को वाइंड करते हैं उसको हम कोर बोलते हैं. जैसे एयर कोर कॉइल होती है, वैसे ही आयरन कोर कॉइल होती है. तो हियर वी यूज द आयरन कोर ट्रांसफॉर्मर और आयरन कोर कॉइल विच इज यूज्ड इन केस ऑफ द ट्रांसफॉर्मर. तो देखो यहाँ पर मैंने दोनों टाइप के कुछ डायग्राम्स ड्रॉ किए हैं. दिस इज फर्स्ट वन इज द कोर टाइप इन विच दिस इज द soft iron and this is primary coil and this is secondary coil. So on these edges we are winding the coils primary and secondary. Then it is called the core type transformer. And in case of the shell type, we wind the primary and secondary coil on this particular inside core. इस पे हम यहाँ पर इसकी वाइंडिंग करते हैं for input and output. ऐसा करने से क्या होता है, शेल टाइप इज मोर बेनिफिशियल फॉर अस. व्हाई इट इज बेनिफिशियल? बिकॉज द टोटल फ्लक्स generated in the primary coil will be associated with the secondary coil in case of the shell type. But in case of this core type transformer, the total flux will not associate it. Some flux will leak through the air or through the surrounding. That's why we prefer to form the transformer in this shell type. Clear? So just like I am showing such a shell type transformer, this is the transformer, and this red wires and red जो आपको टेप दिख रही है उसके पीछे हमने कॉइल प्राइमरी को वाइंड किया है, and the secondary coil is wind behind this blue tape, and this one is what it is, the core, which is the made by the soft iron. And even slotted cuts like this, we use the slotted cuts to reduce the amount of the eddy current. And here the winding is done on the inner part of the transformer or we can say of the iron core, so that it is called the shell type transformer. Clear?
So just I want to read all these things. It is an electric device used to increase or decrease the applied alternating voltage. या तो हम उसको बढ़ाने के लिए यूज लेते हैं या कम करने के लिए यूज लेते हैं. हम स्ट्रीट के बाहर भी जो ट्रांसफार्मर देखते हैं उनका भी पर्पस यही होता है कि जो लॉसेस हो गए वोल्टेज में, जो स्टेशन से हमारे घरों तक सप्लाई होती है, तो उस लॉस को वापस से जो वोल्टेज डिक्रीज हुआ उसको इंक्रीज करके 220 वोल्ट में कन्वर्ट किया जाता है एंड देन इट इज सप्लाइड टू आवर हाउसेस. Okay, so that is the purpose of the transformer, is just to increase or decrease the applied voltage, but the power remains same. means ऐसा नहीं है कि आपने 20 वोल्ट से 200 वोल्ट में अगर कन्वर्ट किया है तो एनर्जी जो है वहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ नहीं लगा. पावर सेम रहती है. जहाँ आप वोल्टेज को जितना बढ़ाओगे करंट उतनी ही कम हो जाएगी. तो टोटल इलेक्ट्रिक पावर जो है वो प्राइमरी सेकेंडरी पर सेम रहती है. और ये एक ऐसी डिवाइस है जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र करने की कैपेबिलिटी रखता है और इसकी जो एफिशिएंसी होती है दैट इज़ प्रैक्टिकली मोर देन 90%, 90 to 99% वी कैन गेट द एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर. और आइडियली तो 100% हम लेते ही है. क्लियर? So this is the alternating voltage. It works on the principle of mutual inductance, according to which the flux associated with the secondary coil is directly proportional to the current flowing in the primary coil and vice versa. Yeah, we already know this principle. 6th chapter में हमने इसको डिटेल में स्टडी किया है और इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस के कोफिशिएंट को डिराइव भी किया है फॉर द कोएक्सियल कॉइल्स. Clear? So that is phi 2 is proportional to I1, phi 2 is M21 I1 और M21 can be written as phi 2 upon I1. हेनरी इसकी यूनिट होती है. म्यूचुअल इंडक्टेंस के कोफिशिएंट की, जो सेल्फ इंडक्टेंस के कोफिशिएंट की भी हम सेम यूनिट लेते हैं. ओके, so now these are the two types of the transformer. This is core type and this is the shell type according to their construction. Now we talk about the step up and step down. So take the screenshot fast. Step up transformer used to increase the voltage. That is, यहाँ पर जो सेकेंडरी कॉइल पर वोल्टेज होगा वो प्राइमरी कॉइल के वोल्टेज से ज्यादा होगा. लेट्स द वोल्टेज हियर इज E1. यहाँ पर जो वोल्टेज है इसको मैं E1 कह रहा हूँ, यहाँ वोल्टेज को E2 कह रहा हूँ. सो इन द स्टेप अप ट्रांसफार्मर द वोल्टेज एट द सेकेंडरी विल बी हायर देन द वोल्टेज एट द प्राइमरी एंड द स्टेप डाउन. और यहाँ देखो जब वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है तो करंट डिक्रीज होगी. इसको मैं आगे इक्वेशन से बताऊंगा वैसे मैथमेटिकल. ओके, एंड द स्टेप डाउन इज व्हाट? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर used to decrease the voltage. ठीक है, और वोल्टेज भी कैसा? ओनली ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज. ओके, नो डायरेक्ट वोल्टेज. बैटरी के वोल्टेज को चेंज नहीं कर सकते ट्रांसफार्मर की हेल्प से, ध्यान रखना. ओके, क्योंकि वहाँ म्यूचुअल इंडक्टेंस का प्रिंसिपल ही नहीं लगेगा. म्यूचुअल इंडक्टेंस कब आता है? जब चेंज होता है करंट में. तो डायरेक्ट करंट तो चेंज ही नहीं होती, तो वहाँ म्यूचुअल इंडक्टेंस वर्क ही नहीं करेगा. ओके, सो दिस इज यूज, दैट इज E1, E2 is less than E1. Okay, so write down this point. The second one, it works only with alternating voltage. It works only with alternating voltage. It do not change the frequency. It do not change the frequency of signal. That is, जो frequency फर्स्ट प्राइमरी पर है वही फ्रीक्वेंसी सेकेंडरी पर होती है.
है ना। एफ को अगर मैं फ्रीक्वेंसी ले रहा हूँ तो फ्रीक्वेंसी एट प्राइमरी एंड फ्रीक्वेंसी एट सेकेंडरी विल बी सेम, इट डज नॉट चेंज द फ्रीक्वेंसी, क्लियर। तो फ्रीक्वेंसी विल रिमेन सेम, डीसी पर वर्क नहीं करेगा, इट्स प्रैक्टिकल। एफिशिएंसी क्या होती है, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, और अगर हम परसेंटेज में लिखते हैं तो पी आउट अपॉन पी इन इंटू 100%। ओके, तो इट्स प्रैक्टिकल एफिशिएंसी इज अबाउट 90% टू 98%, है ना। कुछ केस में 99 भी हो सकती है, बट वो रेयर होते हैं, इसलिए मैं 90 टू 98% तक इसकी प्रैक्टिकल एफिशिएंसी हमें मिलती है। और एफिशिएंसी को हम ईटा से डिनोट करते हैं ना, मैकेनिक्स में भी हमने किया है 11 में। तो ईटा इन परसेंटेज इज पी आउट अपॉन पी इन, आउटपुट यानी सेकेंडरी, P2 अपॉन P1 भी लिख सकते हैं हम इसको, इंटू 100%, P2 अपॉन P1 इंटू 100%। और P क्या होगा, द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट, है ना। द P विल बी व्हाट, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। वोल्टेज को मैं यहाँ पर E से डिनोट कर रहा हूँ, ओके, EMF से हम इसको डिनोट कर रहे हैं। तो टेक द स्क्रीनशॉट फास्ट। We classify transformers on by two types on basis of its construction. As shown, ओके, ये दोनों डायग्राम के रिगार्डिंग मैं बता रहा हूँ। एज शोन इन फिगर 1 एंड 2 रेफरेंस दे सकते हैं। इन 4 टाइप ट्रांसफॉर्मर, द कॉइल्स आर वाउंड ऑन, कॉइल्स को कहाँ वाउंड करते हैं, ऑन एजेस, साइड एजेस हम लिख सकते हैं, साइड एजेस एज शोन। एंड इन शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर, in shell type transformer the coils are wound at center as shown, ओके। और एक चीज लिख देते हैं, द फ्लक्स लिंकेज इज लेस इन शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। इस शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर में फ्लक्स का जो फ्लक्स लिंकेज कह रहा हूं ना, लिंक कितना होता है, इज हाई, है ना, ये हाई होगा। लीकेज अगर बोलता तो वो लेस होता, ओके। लीकेज और लिंकेज में डिफरेंस है, कितना फ्लक्स लिंक हुआ प्राइमरी और सेकेंडरी का, वो यहाँ पर हाई रहता है, ओके। दिस इज द लिंकेज, क्लियर। सो टेक द स्क्रीनशॉट। Okay, so now we are going to discuss the equation. We derive the equation of the transformer and talk about the transformer ratio. So we write the heading working. A subheading for this is working. Let E1, I1 and N1 are number are voltage, current and number
प्राइमरी कॉइल, ठीक है। E1 वोल्टेज है, N1 number of turns and I1 is the current in the primary coil, and their respective value for secondary coil are E2, I2 and N2. Yeah. So now for the derivation we will consider the transformer as ideal transformer. And what is the meaning of ideal transformer? Ideal transformer means a transformer which transfer the power from input to output in 100%, means efficiency is 100% and the flux leakage is zero. Okay, यानी total flux of the primary coil is associated with the flux of secondary coil. यानी flux का जो leakage है वो zero है और linkage जो है वो 100% है. Okay, so that two things we will consider here and then we do the derivation. So according to the laws of EMI, from laws of EMI, what we can write, this E1 is equals to what? It is minus N1 d phi b by dt. लिख सकते हैं सिंगल टर्न के लिए वोल्टेज क्या होता है? माइनस d phi b by dt, and for n turns it will be minus N1 d phi b by dt. Okay, if there are n turns in the coil. सिंगल टर्न के लिए हमने फैराडे लॉज में लिखा था E equals to d phi b. phi b क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स है. ओके, phi b इज द मैग्नेटिक फ्लक्स और ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में सेम है. क्लियर? हम यहाँ पर phi 1 phi 2 दोनों को phi b ले रहे. ओके, लीकेज जो है फ्लक्स का वो जीरो है. फ्लक्स लीकेज को हम यहाँ जीरो लेके डेरिवेशन कर रहे हैं. तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1 and if we write E2 in the same way, then it will be what? It is minus N2 d phi b by dt, and this is equation number 2. Clear? N2 d phi b by dt. So this is the equation according to the laws of EMI. अब इन दोनों को divide कर देते हैं. So dividing equation 2 with equation 1, we can write this E2 upon E1 is equals to what? देखो माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा और ये d phi b by dt ये भी इससे कैंसिल होगा. So what remains? It will be only N2 upon N1 and let it is equation number 3. Okay, फ्लक्स सेम है तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी and this negative sign will also eliminate it. So this equation is the E2 upon E1 equals to N1 upon N2. Now we consider the efficiency, 100% efficiency. So power at input and power at output will be same. मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करता है ट्रांसफार्मर. एक ऐसी डिवाइस है जो इनपुट से आउटपुट पर 2 पोर्ट 4 टर्मिनल डिवाइस है. इसको ये भी कहा जाता है. पोर्ट क्या होता है? दिस इज द फर्स्ट पोर्ट which is the input port. Okay, PORT, and this is the second port, and there are 4 terminals, 2 input terminal and 2 output terminal. Clear? So it is 2 port 4 terminals electric device. Clear? Which is used to change the voltage. So now write down up to this one. Take the screenshot fast. Also, since transformer transfer the maximum power from input to output, I slash P means input and O slash P means output, that is P1 equals to P2. आइडियल कंडीशन में ले रहे हैं. ठीक है, और आइडियली वी आर राइटिंग. डेरिवेशन में हम आइडियल कंडीशंस लेके करते हैं.
So P1 equals to P2, or we can write E1 I1 equals to E2 I2, or from here if we find E2 upon E1, then it will be what? It is I1 upon I2, and let it is equation number 4. ठीक है, this is equation number 3, this is equation number 4. Now if we compare these two equations, क्या तो E2 upon E1 यहाँ भी है, E2 upon E1 यहाँ भी है, दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमें EMF यानी वोल्टेज, टर्न्स और करंट, इन तीनों में एक रिलेशन मिल जाएगा, और वही एक ही इक्वेशन है जिस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं। क्लियर, जो न्यूमेरिकल जिससे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ एक बार। Comparing 3 and 4, on comparing 3 and 4, we can write E2 upon E1 equals to I1 upon I2 equals to N2 upon N1, and that is equals to K. This K is called transformer ratio. This K is called transformer ratio. Okay, and it is the ratio of output to input voltage, output to input turns, number of turn, इसको turn ratio भी कहा जाता है, और the input to output current. Clear? So remember this equation for the case of transformer. Clear? This is the transformer equation where K is called transformer ratio or turn ratio. Okay, now for a step up transformer, the K will be what? K will be more than 1. P2 बड़ा होगा ना E1 से स्टेप अप में, तो K की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। जैसे मान लो 200 वोल्ट है और ये 20 वोल्ट है, तो 200 अपॉन 20 it will be 10 वोल्ट, तो K की वैल्यू मोर देन 1 होगी। तो फॉर स्टेप अप K is greater than 1, and for step down K is less than 1. Clear? The power remains same, और उससे हमने ये इक्वेशन फाइंड की है, और K का नाम याद रखना, ट्रांसफॉर्मर रेशियो और टर्न रेशियो इसको बोलते हैं। ओके, न्यूमेरिकल में काम आएगा ये, और K की वैल्यू से हम डिसाइड कर सकते हैं कि वो स्टेप अप है या स्टेप डाउन। ओके, सो टेक द स्क्रीनशॉट। Efficiency of transformer, it is denoted by eta, and it is output power upon input power. अभी मैं केवल आउट ऑफ 1 कह रहा हूँ, अगर परसेंटेज होगा तो 100% मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, और वी कैन राइट इट एज P2 अपॉन P1। अगर हम P2 P1 की वैल्यू रखें, then it will be E2 I2 upon E1 I1. Clear? So this is the formula for its efficiency. अगर आपको डायरेक्ट पावर्स गिवन है, then you can use this formula, and if the voltage and currents are given or the transformer ratio is given, then you can use this formula. E2 will be K, so it will be K I2 upon I1, है ना? तो इस तरह से हम इसको यूज ले सकते हैं फॉर्मूला को टू डिटरमाइन द एफिशिएंसी। एंड इफ वी हैव टू फाइंड द एफिशिएंसी इन परसेंटेज, ईटा परसेंटेज अगर लिखना है, देन इट विल बी व्हाट? इट इज जस्ट P2 अपॉन P1 इनटू 100, एंड ओवरऑल वैल्यू पर हम परसेंटेज साइन लगा देते हैं। क्लियर? सो नाउ वी टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। टाइप्स ऑफ losses in transformer. Okay, so there are 5 type of losses which occurs in the transformer, and they are energy losses definitely. Okay, so the first loss is the coil loss. The first loss is the coil loss.
एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉइल लॉस? देखो मैंने बताया था अभी कि वी जनरली यूज वायर, ओके, इन फॉर्मिंग दैट कॉइल, एंड ईच वायर हैव सम रेजिस्टेंस। हर वायर का कुछ रेजिस्टेंस होता है, तो और रेजिस्टेंस से जब भी कोई करंट पास होती है तो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है ना, इट प्रोड्यूसेस द हीटिंग इफेक्ट अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. So that's why the coil loss means the resistance of the coil will produce the heat and it waste or it dissipate the electric energy into the heat energy. So how we can minimize it? We cannot make it zero. Okay, रिड्यूस कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, बट उसको रिमूव नहीं कर सकते, जो लॉसेस की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर. तो अगर हमारे पास में कॉइल है तो हम ऐसा वायर लें जो थिक हो प्लस उसका जो रेजिस्टेंस है वो मिनिमम. क्लियर? तो उसके लिए हम कॉपर वायर को यूज लेते हैं. वी यूज द कॉपर वायर हैविंग द लीस्ट रेजिस्टेंस, जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती है. तो राइट डाउन द फर्स्ट लॉस, दिस इज द कॉइल लॉस. ओके, द रेजिस्टेंस ऑफ coil wire shows heating effect when current flows through it. Okay, in short मैं बता रहा हूँ, we use copper wire to minimize this resistance. इस रेजिस्टेंस को और एनहेंस हीटिंग और रेजिस्टेंस को मिनिमाइज करने के लिए हम कॉपर वायर यूज लेते हैं इन द कोर ऑफ द ट्रांसफॉर्मर. कोर का मतलब जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग है, ठीक है, उसको हम कोर वायर कह रहे हैं. सॉरी, कॉइल वायर, नॉट द कोर, इट इज द कॉइल वायर. सो कॉइल वायर मीन्स जो हम प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स फॉर्म कर रहे हैं उसमें जो वायर यूज होता है वो कॉपर का यूज लिया जाता है. क्लियर? तो राइट डाउन द सेकंड वन, एंड द सेकंड वन इज एडी लॉस. As we know, what is the eddy current? The eddy currents are formed when we take the solid form or metal sheet, okay, or the soft iron sheet, and the flux associated with it when changes, then the eddy or whirlpool shape में वहाँ currents loop बनते हैं जो कि like concentric circles होते हैं, और वो भी heating effect शो करते हैं. तो एडी लॉस को रिड्यूस करने के लिए, उसको भी हम रिमूव नहीं कर सकते, रिड्यूस करने के लिए वी यूज द लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन विद द स्लॉटेड कट्स. जैसा मैंने अभी बताया था, इस तरह के हम सॉफ्ट आयरन मटेरियल को यूज लेते हैं जिसमें कट्स भी लगे हुए होते हैं और प्लस ये लैमिनेटेड होता है. लैमिनेटेड का मतलब हो गया कि इस पे इंसुलेटिंग मटेरियल की कोटिंग होती है ताकि ये एक दूसरे से जब ज्वाइन हो तो ये आपस में शॉर्ट नहीं हो, कंटिन्यूटी नहीं मिले कंडक्टिंग मटेरियल. ओके, सो ईच में जो करंट प्रोड्यूस होगी वो मिनिमाइज हो जाएगी. अगर एक सॉलिड पीस पूरा ले लिया जाए क्यूबॉइड फॉर्म में जो कि सॉलिड हो और इस तरह से पोर्शन नहीं हो, कट्स नहीं हो और प्लस वो लैमिनेटेड अलग अलग नहीं हो, तो उस केस में बहुत हाई अमाउंट की हीट प्रोड्यूस होगी एडी करंट के कारण, और वो वहाँ पर हो सकता है उस ट्रांसफॉर्मर को बर्न कर डैमेज कर दे. ओके, सो दैट्स व्हाई वी यूज द स्लॉटेड कट लैमिनेटेड कोर ऑफ द सॉफ्ट आयरन टू रिड्यूस दिस इफेक्ट ऑफ एडी करंट. ओके, सो इन द कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर we use the soft iron in which eddy currents form and which loss electric energy or waste the electric energy into heat energy. So to reduce this eddy current, we use the laminated core with the slotted cuts. Yeah. To reduce
this its effect, we use, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, रफ करूंगा मैं. We use laminated soft iron core with slotted cuts. ठीक है, आप चाहो तो इस तरह का एक डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हो, हाँ, लाइक फॉर्म लाइक शेप जो होती है, इस तरह के हम लेमिनेटेड कोर्स को यूज लेते हैं टू फॉर्म द कोर ऑफ द ट्रांसफॉर्मर. ठीक है, और कोर लेना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप कोर एयर कोर ले लोगे तो फ्लक्स जो प्रोड्यूस होगा ना वो बहुत लो अमाउंट का होगा. तो सॉफ्ट आयरन जो एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है वो मैग्नेटिक फ्लक्स की इंटेंसिटी को या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को अप टू 1000 टाइम्स इंक्रीज कर देता है. So we have to use this soft iron at the core of the transformer, but with this technique we can minimize the loss due to the eddy current. Clear? So take the screenshot now. I am going to rough all these 2 points as well. The third one is flux leakage. Okay, flux leakage जो है ये भी एक तरह का लॉस है कि if the flux of the primary coil is not completely associated with the secondary coil, then we say that some flux leak through from primary to secondary or through the surrounding. Okay, so to minimize this we use the shell type transformer, जिससे कि हम एक ही कॉइल के ऊपर हम अपोजिट टर्न्स लगा के सेकेंडरी कॉइल को वाइंड कर देते हैं. यानी सिंगल हम इस तरह का, सपोज ये सॉफ्ट आयरन है, पहले हमने प्राइमरी कॉइल को वाइंड किया और उसके ऊपर ही हम सेकेंडरी कॉइल को वाइंड कर देते हैं. क्लियर? या फिर इस तरह का अरेंजमेंट हो कि हमने हाफ पोर्शन पे प्राइमरी ले ली और हाफ पोर्शन पर सेकेंडरी ले ली, ऐसा भी किया जा सकता है. या पूरे पोर्शन पे पहले प्राइमरी और फिर सेकेंडरी, ये भी हम कर सकते हैं. ओके, सो दैट इज द that will reduce the leakage of the flux through primary to secondary. Okay, so when the flux of primary is not completely associated with secondary, then it is called flux leakage loss. ठीक है, फ्लक्स लीकेज लॉस भी इसको कह सकते हैं. टू मिनिमाइज इट we use shell type transformer, in which secondary is wound over the primary. Okay, on by or vice versa, in which secondary is wound over the primary. ठीक है, जैसा हमने पहले डायग्राम में शो किया. क्लियर? द फोर्थ वन, हमिंग लॉस. ठीक है, हमिंग लॉस. The humming loss is what? When the transformer work or it is operated to the input output voltage, then what happen? Noise or a sound is also generated. ये साउंड क्यों जनरेट होता है? क्योंकि जब हम उसको वाइंड करते हैं, है ना, ये जो वायर है, इस वायर की जब हम वाइंडिंग करेंगे इस तरह से इस पर्टिकुलर कॉइल पर,
या स्कोर पर, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, थोड़ा सा गैप रह जाता है वायर वायर के बीच में हल्का सा, और उस गैप के कारण जब उसमें करंट फ्लो होती है तो ये वायर वाइब्रेट करता है ना, उसमें वाइब्रेशंस होते हैं कंप्रेशन और एक्सटेंशन के कारण, तो दैट वाइब्रेशन विल क्रिएट द नॉइस, है ना, हमेशा साउंड वाइब्रेशन के कारण प्रोड्यूस होता है ना। तो व्हेन दिस एयर गैप लेफ्ट और रिमेन्स बिटवीन द कोर कॉइल ऑफ द ट्रांसफार्मर, देन ड्यू टू वाइब्रेशन द साउंड इज प्रोड्यूस। तो इसको मिनिमाइज करने का क्या तरीका है कि हम जो कॉइल बनाते हैं उस कॉइल को हम टाइटली उसको वाउंड करें ऑन द कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर। तो टाइट जितनी वाइंडिंग होगी उस कॉइल की, उतना ही ये हमिंग लॉस कम होगा। क्लियर? तो इट हमिंग मीन्स इट इज रिलेटेड विद द साउंड और नॉइस। क्लियर? तो व्हेन करंट flows through coils of transformer, then due to vibration the sound or noise is produced। और ये भी किस कारण प्रोड्यूस हो रहा है, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक एनर्जी के कारण। वाइब्रेशन में जो एनर्जी आएगी वो इलेक्ट्रिक एनर्जी आएगी, इसलिए वो एक तरह से इलेक्ट्रिक एनर्जी का लॉस है। क्लियर? सो इट इज आल्सो द लॉस, इट इज आल्सो काइंड ऑफ लॉस, एंड टू मिनिमाइज this loss we wound the coils लिख रहा हूं, दोनों की जो वाइंडिंग है, ओके, wound the coils tightly। ठीक है, जो कॉइल की वाइंडिंग है अगर वो हम टाइट कर दें तो ये हमिंग लॉस जो हो रहा है, जो साउंड वाइब्रेशन के कारण प्रोड्यूस कर रहा है, वो रिड्यूस हो जाएगा। ओके, तो थर्ड लास्ट वन, एक एडी लॉस की हम बात करेंगे। टेक द स्क्रीनशॉट। Sorry, the last one is the hysteresis loss. Eddy loss we have already discussed. Okay, so the last fifth one loss is the hysteresis loss. Actually, this hysteresis curve or the BH curve was earlier in our syllabus, okay, in the chapter number 5th. But right now it is removed from the CBSE for this session only 2021. So I will not explain in detail this one, but I will give you a brief idea that what is the hysteresis। कि जब सॉफ्ट आयरन हम एज अ कोर यूज लेते हैं तो करंट को जब जीरो कर दिया जाता है तभी उसमें मैग्नेटिज्म लेफ्ट रह जाता है, जिसको रेजिडुअल मैग्नेटिज्म कहा जाता है। सॉफ्ट आयरन एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है और जब उसमें उसके सराउंडिंग में करंट फ्लो होती है तो उस करंट के कारण द मटेरियल इटसेल्फ गेट मैग्नेटाइज्ड, है ना। कॉइल में जब करंट फ्लो होती है और जब करंट जीरो कर देते हैं तब भी मैग्नेटिक फील्ड उसमें लेफ्ट रह जाता है, यानी B जो है वो H के बिहाइंड रहता है और इसी को हिस्टेरेसिस कहा जाता है। D इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, H इज द मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ओके, जो हम अप्लाई कर रहे हैं करंट के थ्रू, तो इसमें इसको हिस्टेरेसिस कहा जाता है और ये भी एक तरह के लॉस को रिप्रेजेंट करता है। तो इसके लिए हम सॉफ्ट आयरन और स्टील फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स भी अलग अलग होते हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो सॉफ्ट आयरन है उसको यूज लेते हैं, एंड सॉफ्ट आयरन रिड्यूसेस दिस हिस्टेरेसिस लॉस बाय द कंसीडरेबल अमाउंट। Okay, so the use of the soft iron as a ferromagnetic material in the core of the transformer is to reduce this hysteresis loss. Okay, so इसको एक शॉर्ट में मैं बता देता हूँ। The hysteresis loss when the current through coil becomes zero, then some magnetism remains left
in the core of transformer. This loss, this produces loss in the इलेक्ट्रिक एनर्जी. ठीक है. BH कर्व का BH कर्व जो है उसका एक एरिया होता है. हम इस कर्व को जब प्लॉट करते हैं तो उस एरिया को ही हम एनर्जी लॉस पर यूनिट वॉल्यूम से रिप्रेजेंट करते हैं. क्लियर. तो हाउ टू मिनिमाइज दिस हिस्टैरिसीस लॉस? वी यूज द सॉफ्ट आयरन. We use the soft iron to minimize this hysteresis loss. To minimize this type of loss. This type of loss. Clear? So take the screenshot fast.